تو یہ پابندی تھی کہ آپ کچھ نہیں لکھ سکتے, آپ کچھ نہیں چھپوا سکتے. یہ دو جو پرنٹنگ پریس تھے یہ صرف سرکاری کام چھاپتے تھے. لہذا ہمارے جو افسانہ نگار تھے, ہمارے جو فکشن رائٹر تھے, وہ حیران تھے کہ ہم اس کو شائع کس میں کریں. لہذا آپ لوگ سن کر بڑے حیران ہو گئے کہ بلوچوں کے جو پہلے ادبی تھے وہ پہاڑی چٹانیں تھیں, وہ جا کے وہاں لکھ دیتے تھے, یہ ان کا ایک اظہار تھا. پھر وہ لیبیز والے جا کے ان کو مٹاتے تھے کہ کوساروں کی عطا رسم نہیں خاموشی, رات سو جائے تو بہتا ہوا چشمہ بولے. تو اب یہ تو روایت, یہ تو صرف اور صرف ہمارے بلوچستان کا وہ احساس ہے نا. میں آپ کو ایک بات کا میں دعویٰ کرتی چلوں کہ جو انٹلیکٹ, جو سیاسی شعور آپ کو بلوچستان کے ادیب میں ملے گا وہ آپ کو دیگر کہیں نہیں ملے گا. بہت شکریہ. جب استاد نہیں پڑھتے تو طالب علم کیا خاک پڑھیں گے؟ وہ پڑھیں گے نہیں تو انہیں معلوم کیسے ہوگا کہ کہاں کہاں ادب لکھا جا رہا ہے؟ یہ مصنوعی طریقے سے ہم اس کو لاتے ہیں کہ جی ہمیں لوگوں کو پتہ لگے جی بلوچستان کا ادب کلچر کیا ہے, سندھ کا کلچر کیا ہے, پنجاب کا دیہی کلچر کیا ہے. بہت کام ہو رہا ہے, بہت تھرڈ کلاس ناول, افسانے اور شاعری کی جا رہی ہے جس میں کلچر بڑا ڈومیننٹ ہے. بلوچستان میں اردو ادب, اس حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہے. اردو ادب کے بڑے نام ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب جو اردو کے تنقید کے حوالے سے بڑے نام ہیں, شاعر ہیں, محقق ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس سیشن میں وہ ہمارے ساتھ ہیں تو وہ بلوچستان میں اردو ادب, ان کی تاریخ کے بارے میں ان کی اچھی خاصی آگاہی بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ آگاہ گل, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اردو شاعری, جس میں بلوچستان کی زمین, خوشبو اور مہک خطاشات کی شاعری میں موجود ہے, اور اس طرح کی ایک روایت انہوں نے اپنی فکشن میں پیدا کرنے کی کوشش کی, جو اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی فکشن میں اس طرح کی روایت نہیں ہے کہ ایک آپ اس علاقے کے لفظیات کو استعمال کریں, اور وہاں کی زمین اور لوکیل اور لینڈسکیپ کو اپنی کہانیوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں, بلکہ اکثر اس کا بیانیہ جو اردو کہانی کی ہے ان کے یہاں نہیں ہے, ان کی اپنی ایک بیانیہ ہے. تو اس کے ساتھ محسن شکیل صاحب بڑے معروف شاعر ہیں اردو کے, کون ان کو نہیں جانتا, ہم سب ان کو جانتے ہیں. اور اس کے ساتھ قندیل بدر جو ایک علمی ادبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں, شاعرہ ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں, اس سیشن کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں جو میں نے سوچا تھا, مگر یہ طریقہ بڑا سہل آسان بنانے کی کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے میں چاہوں گا, ضیاء صاحب تو میرے ساتھ ہیں مگر گل صاحب سے, آغا گل سے, کہ بلوچستان میں آپ پہلے, کیونکہ بہت سارے ایسے سامعین اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں جو فکشن کو تو جانتے ہیں, کہانی کو جانتے ہیں, مگر یہ نہیں جانتے کہ بلوچستان میں فکشن کی روایت کب شروع ہوتی ہے. جی ہاں, یعنی بلوچستان میں اردو فکشن کی روایت. دراصل یہ ہے کہ بلوچستان کو کوئی 200 سال سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان یہاں پر ہے, کیونکہ 1883 میں جب انگریز آئے وہ اپنے ساتھ سرکاری ملازم لائے تو وہ اردو یہاں پر ڈیولپ ہونے لگی. اس کے علاوہ جو شروع کے محکمے تھے, دراصل کوئٹہ شہر جو ہے دراصل یہ چھاؤنی تھا, ترانی تھا, کوئٹہ اس کا سیٹلائٹ ہے. کوئٹہ کو آباد کیا گیا تاکہ ان کے خادم و مشینیں وغیرہ ٹھیک کرنے کے, وردیاں سپلائی کرنا وغیرہ. تو یہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے اردو کو پرموٹ کیا. تو جب انہوں نے اردو کو پرموٹ کیا تو ایک دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں کہ 13 نومبر 1839 کو کلات پر حملہ کر کے بلوچستان کو ایک کالونی بنا دیا گیا. اس وقت سے آج تک یہ کالونی ہے. تو چونکہ یہ کالونی ہے تو کالونی میں خوف بڑا ہوتا ہے کہ ہمارے جو کالونیل سبجیکٹ ہیں, ہمارے غلام بغاوت نہ کر دے, لڑے نہ. لہذا بلوچستان میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں لگایا گیا, لگانے کی اجازت نہیں دی گئی. کرنل وکٹر کے نام پر, کرنل البرٹ کے نام پر 2 پریس لگے. کرنل البرٹ کا جو پریس تھا وہ تو
چلا ہے، لیکن جو وکٹر کا تھا وہ 35 کے زلزلے میں ختم ہوا، پھر دوبارہ نہیں چل سکا. تو یہ پابندی تھی کہ آپ کچھ نہیں لکھ سکتے، آپ کچھ نہیں چھپوا سکتے. یہ دو جو پرنٹنگ پریس تھے یہ صرف سرکاری کام چھاپتے تھے. لہذا ہمارے جو افسانہ نگار تھے، ہمارے جو فکشن رائٹر تھے، وہ حیران تھے کہ ہم اس کو شائع کس میں کریں. لہذا آپ لوگ سن کر بڑے حیران ہو کہ بلوچوں کے جو پہلے ادبی تھے وہ پہاڑی چٹانیں تھیں، وہ جا کے وہاں لکھ دیتے تھے. یہ ان کا ایک اظہار تھا. پھر وہ لیبیز والے جا کے ان کو مٹاتے تھے. پہلے جو تحریری طور پر آیا 1920 میں ہمارا شمس گروی، وہ پہلا ایک پمفلیٹ آیا، وہاں سے ہماری ابتدا شروع ہوئی ہمارے افسانے کی. افسانہ ایک ٹیکنیکل بات ہے. پہلے جتنے بھی افسانہ نگار ہیں ہم ان کو احترامات کہتے ہیں افسانہ نگار ہے. ایکچولی وہ افسانے نہیں ہیں، وہ ضمنی کہانیاں ہیں. بلوچستان میں اخبار چھاپنے پر بھی پابندی تھی، اخبار لانے پر بھی پابندی تھی. ایون جب میں چھوٹا بچہ تھا میرے والد کی ایکسپلینیشن کال ہوئی، محمد اکبر خان کیا آپ اخبار پڑھتے ہوئے پائے گئے ہیں؟ تو میں چھوٹا تھا، مجھے نہیں پتا انہوں نے پھر اس کا کیا جواب دیا کہ میں اخبار پڑھتا نہیں پڑھتا تھا. تو ہمارے لوگ کراچی، اور کراچی کو نزدیک پڑتا تھا اس زمانے میں، یہ سڑک بھی نہیں تھی خوددار والی، وہ کراچی سے اخبار چھپواتے تھے، اس میں وہ چیزیں لاتے تھے. چونکہ بلوچستان میں اخبار لانے میں پابندی ہے، وہ ڈاک کے ذریعے وہ لفافوں میں بھجواتے تھے. افسانہ دیکھیں جیسے محسن شکیل بیٹھے ہیں، قندیل بدر، شاعری سننے کی چیز ہے، شاعری سننے کی چیز ہے، افسانہ پڑھنے کی چیز ہے، ناول پڑھنے کی چیز ہے. تو ناول افسانہ ایک فلو میں لکھا جاتا ہے، مطلب ایک فلو میں پڑھا جاتا ہے. لیکن ہمارے جو ابتدائی افسانے وہ قسطوں میں گئے. اخبار آ گیا، اس میں ایک افسانے کا ٹکڑا آ گیا، پھر دوسرا اخبار ہے، اگلے ہفتے دیکھے دوسرا ٹکڑا آ گیا. تو وہ چیز نہیں ہو سکی. ایک نئی جنریشن جو آپ ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی پابندی تھی کہ ہمارے دفتروں میں جب سائیکلو سٹائل مشین تھی تو انٹیلیجنس CID والے آ کر ہر مہینے چیک کرتے تھے کہ آپ نے اپنے سائیکلو سٹائل مشین سے کتنے کاغذ نکالے. آپ سرکاری کاغذ نکالیں گے، کوئی تحریر، کوئی افسانہ، کوئی چیز تو نہیں نکالا. ہر ہفتے ہر مہینے پھر ان کو جواب دینا پڑتا تھا. تو ہماری جو روایت تھی افسانے کی وہ اس لیے نہیں ہو سکی کہ کچھ فنی ٹائپ کے ایزمپشن ہے. اسی طرح ہمارے لٹریچر کو بلوچستان میں بطور ہتھیار استعمال کیا گیا، بطور ٹول استعمال کیا گیا. مثلاً کلار پر جب حملہ ہوا 58 میں، اس کے فوراً بعد وہاں مشاعرہ کیا گیا، شاعروں کو بائی فورس پکڑ کے لے گئے. کلار میں مشاعرہ، افسانے، یہ وہ تماشا. 1912 میں جو پہلے مشاعرہ ہوا، سرکار نے پیسے دیے تھے 250 روپے کہ آپ شاعری کریں، زمین گراؤنڈ کی بات کوئی نہ کرے، زمین کی بات نہ کرے. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو افسانے میں جو رومانس آیا ہے وہ رومانس ہماری چوائس نہیں ہے. ایکچولی جنگ پلاسی کے بعد تو ہندوستان ہو گیا تھا، غلام ہو گیا تھا. یہ 1857 تک تو ان کے وظیفہ خور تھے جن کو وہ پیسے دیتے تھے. کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں فیسیلیٹیٹر. جیسے بلوچستان کی حکومت جن کے ذریعے چل رہی ہے وہ فیسیلیٹیٹر ہے، بولتے تو بلوچی ہے، تو لوگ پھر ناراض نہیں ہوتے. اسی طرح ہمارے جو مسلمان جو تھے بادشاہ، یہ سارے بیچارے دیہڑی دار تھے. اور لیکن چونکہ مسلمان خوش تھے کہ ہمارا مسلمان ہے بادشاہ، تو بڑے خوش ہوتے تھے. ان پر یہ پابندی تھی کہ سوائے محبت کے کچھ بات نہیں کریں گے ورنہ مارے جائیں گے، آپ کو ہٹا دیا جائے گا. جیسے آج کل ٹیلی ویژن میں نہیں جو شادی کھیلتے ہیں، شادی میری شادی، اس کی شادی، کس کی شادی، یہ شادی جو کھیلتے ہیں. میں آپ کو اگر آپ بتائیں کہ مجھے نصرت ٹھاکر نے بلایا تھا، عطا شاد کو، مجھے، کئی لوگوں کو. اسے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ بھی لکھیں. تو میں نے کہا ہمیں تو خوشی ہوگی، ہم TV کے لیے ڈرامہ لکھیں. تو انہوں نے کہا یہ لکھیں وہ لکھیں. پھر مجھے انہوں نے کہا میں تم کو ایک کہانی دیتا ہوں. ایک لڑکی کو امیر بننے کا شوق تھا تو وہ امیر آدمی سے شادی کر لیتی ہے تو امیر تو ہو جاتی ہے، خوشی نہیں ملتی. میں نے کہا یار آپ مذاق کر رہے ہیں، ٹھاکر صاحب اتنا بڑا آپ کا نام ہے، میں نائی ہوں کہ آپ کے بال کاٹ دوں، یا میں درزی ہوں کہ آپ کے کپڑے سی کے دے دوں؟ میں تو لکھنے والا رائٹر ہوں، آپ تو اپنی مرضی سے. آپ سارے جو TV پر دیکھتے ہیں نا شادی صبح سے شام تک، لگتا ہے پاکستان کا مسئلہ شادی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. یہ اسی غلامی کی ایک علامت ہے. اور اگر آپ اس کا نام نہیں لے سکتے اس کا مطلب آپ اس کے غلام ہیں. تو ہمارے لٹریچر میں بھی جو اتنی مداخلت ہوئی، پر ایک جو میری نسل کے لوگ ہیں جانتے، گلی محلے
लाइब्रेरियाँ थी, लोग किताबें पढ़ते थे, 4 आने 2 आने, लेकिन जो पोर्नोग्राफिक होते थे वो महंगे होते थे, वो हम बड़ी मुश्किल से 8 आने में लेकर रात को पढ़ते थे। तो कहने का मतलब है कि लोग पढ़ते थे, उनको पढ़ने का शौक़ था, लेकिन जब हुकूमत ने उसमें मदाखलत की, जैसे बहुत बड़ा नाम है नसीम दुरानी, जब सीब रिसाला तैयार होता था फिर इंटेलिजेंस वाले आते थे, वो देखते थे ये काटो ये रखो वो रखो करके, वो फिर रिसाला जारी होता था। बात यह है कि जब लिटरेचर में सरकार अभी जैसे एक साहब हमारे कह रहे थे कि नौजवान सोचे कैसे नहीं, जिसमें 7वीं सदी में मुंजमद करके जिस कौम को रखा हुआ है वो आदमी कैसे सोचेगा, आप मुझे बताएं। तो कहने का मतलब है कि जो फिक्शन है वो आज़ादी से लिखा जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी बात है, जब क्राइसिस हो, इनकलाब फ्रांस है, बुर्जुआ इनकलाब है, जो अमेरिकन सिविल वॉर है, ये सारी बातें जितनी भी आप देख रहे हैं, उसमें फिर एक क्लास का लिटरेचर पैदा, शाहकार पैदा होते हैं। बलूचिस्तान क्राइसिस में भी है, जब से मैं पैदा हूँ ये क्राइसिस में है। बहुत सारे लोग हमारे गायब हैं, इधर है उधर, लेकिन बड़ा लिटरेचर भी नहीं पैदा होता। उसकी वजह हुकूमत की बहुत मुदाखलत है, और ये एक मज़ाहिया टाइप के मेरे लिहाज से तो मज़ाहिया लगते हैं। वो ये है कि यूरोप में आप देखें कि हम जाते तो वो इस बेंच पर वो बैठता था, उस पर वो बैठता था, जर्मनी में वो बैठता था, हम वहाँ तस्वीरें भी खिंचाते हैं अदीब, और उसकी इतनी बड़ी इज्जत होती है। आइंस्टाइन के मकान को हम तबरक के तौर पर देखते हैं, या और जो भी राइटर हैं, लेकिन हमारे सड़कें भी हमला आवरों के नाम पर हैं। वो दहशतगर्द जो कल्चर को ख़त्म करने के लिए आए, जिन्होंने हमारे मिलिया मेट कर दिया, इसीलिए इसको कहते थे, इसका नाम भी है को हिंदू कुश, यानी लूट के इतना ले जाते थे कि लोग गिर गिर के मर जाते थे भूखे प्यासे, इसलिए उस पहाड़ का नाम है को हिंदू कुश, हिंदू को मारने वाला पहाड़। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने कहा कि जी सोल्जर, और उसको एक पेज पर रखें। इसके लिए पहले जनरल रहीमुद्दीन साहब का कलम कबीला बना था कि एक पेज पर रखें, यानी शायर अदीब और सोल्जर एक पेज पर हो, तो ये कैसे मुमकिन है? जब जंग होगी वो तो वो इनकी जो गज़ल पढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि वो तो एक पेज पर होगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पर हुआ क्वेटा राइटर फोरम के दोनों के एक पेज पर। मैं कि देखिए तो मुमकिन ही नहीं है, ये कैसे एक पेज पर हैं? तो गवर्नमेंट कहती है दोनों एक पेज पर हैं। तो क्वेटा फोरम जो बना था, मुझे जब पता चला कि ये तो किसी और, तो मैंने छोड़ दिया उसको। एक फंक्शन के लिए सेरीन होटल में 70 लाख रुपया मिला, और हमारे अदीब भूखे मर गए, यासीन बिस्मिल खून थूकता मर गया। तो कहने का मतलब है कि लिटरेचर जब भी देखें, अगर अरिस्टोटल की एकेडमी थी, अगर अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया उसको फाइनेंस ना करता, वो नहीं चल सकती थी। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे बच्चे चाहे वो बलूची भी लिखे, बरावी में लिखे, पश्तो में लिखे, अंग्रेज़ी में लिखे, जिस जुबान में लिखे। एक्चुअली अदीबों की 2 किस्में होती हैं। एक होती है स्टेटस को वाले अदीब, जो बादशाह के साथ साथ चलते हैं, वो बादशाह को खुश रखते हैं। जैसे अमीर खुसरो, एक बादशाह है, वो उसके दूसरा तीसरा चौथा वो हर एक के साथ बैठा हुआ हर एक को खुश कर रहा है। जैसे हमारा इलामा इकबाल साहब, वो हर एक को खुश कर रहे हैं, बादशाह भी खुश कर रहे हैं। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मुझे नोबेल अवार्ड नहीं मिलेगा कि ये तो पेरोकियल शायर है, तो उसने मसोलिनी वगैरह की भी तारीफ कर दी। वो क्वीन बरतानिया का भी वफादार नाइट है, सर कटा देगा उसके लिए, और मुसलमानों का भी। एक ये वो अदीबों की किस्में। अच्छा, इसको बोलते हैं स्टेटस को। दूसरा जो है उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव या रेडिकल। तो हम लोग रेडिकल लोग हैं, हम सरकार दरबार के मरदूत, उनको हम आने नहीं देते। कई दफ़ा इस फंक्शन में मेरा नाम साहब, हम आपकी मेरा नाम कैसे आ गया? ज़रूर आएंगे, फिर सिलसिले में गुफ्तगू जारी रहेगी। तो अब हम मोहसिन साहब हमारे साथ हैं, बड़ा अरसा हुआ है मैंने उसको देखे हुए, तो अगरचे उनकी किताबें हम तक पहुंचती हैं, एक सवाल हमेशा ये कायम होता है, जैसे मैंने आगा गुल से कहा कि वहाँ पंजाब में, लाहौर में, कराची में फिक्शन की रवायत पर या कोई थीसिस लिखी जाती है तो उसमें कभी बलूचिस्तान का जिक्र नहीं होता। तो आप बड़े दायरे से कट चुके हैं। इस सवाल के जवाब तो हम डॉक्टर ज़िया साहब से पूछते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। आपसे ये सवाल है कि मुल्ला मोहम्मद हसन से लेकर आबिद शाह आबिद तक, गुलकान नसीर, अताशाह तक और हाब तक, आपके ज़माने तक आते हुए, तो बलूचिस्तान की जो गज़ल है, ये बलूचिस्तान की नज़्म है। वाकई हम इसको एक खलक दबिस्तान का नाम दे सकते हैं, जिस तरह के लखनवी दबिस्तान है, देहलवी दबिस्तान है। जिस तरह के मुनीर नियाज़ी ने कहा, भाई कराची में कोई शायर माहिर नहीं होता है, जो शायर होता है वो लाहौर के होते हैं।
تو آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ جب اپنی شناخت کرائیں گے کہ واقعی آپ غزل لکھ رہے تھے، اتنے سارے شعراء آ گئے چلے گئے، انہوں نے لکھا، تو آپ کیا ایک ایسی روایت آ گئی تو ہم کہہ سکیں کہ یہ بلوچستان کی غزل ہے؟ اصل میں تہذیبی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو زبان جو ہے اپنا اظہار، ظاہر ہے اس کا سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ لفظ ہوتا ہے، اور لفظ کے ذریعے سے ہی بات سامنے آتی ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ بلوچستان کا ایک خاص فلیور ہونا چاہیے اور ہے، اس کی سب سے بڑی مثال تو عطا شاد کی ہے کہ عطا شاد کی شاعری میں ان الفاظ کو برتا گیا جو کہ ہماری مروج شعری روایت میں کسی اضافے کی طرف اس کو لے کر چلے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دو طرح سے اس کا اظہار ہوتا ہے، ایک تہذیبی اور ایک وجدانی طور پر۔ وجدانی طور پر تو آپ کو کسی لکھنے والے کو کسی سطح پر یا کسی جگہ پر یا کسی جگہ پہ آپ اس کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ اس طرح سے لکھیں، لیکن وہ جو ایک اس کے اندر ایک علم کی اور فہم کی اور ایک جو اس کے پاس تنقیدی شعور ہوتا ہے، اس کی روشنی میں جب وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر اس میں جیسے ورڈزورتھ کے زمانے میں جو انگلش لکھی جاتی تھی تو اس میں انہوں نے یہ دریافت کیا کہ نہیں، دیہات کی زبان جو ہے وہ زیادہ ایتھینٹک ہوتی ہے، تو وہ زبان لکھی جائے جو اس طرح سے ہم نے یہاں کے بلوچستان کی جو شعری روایت ہے، چاہے وہ نظم میں ہو، غزل میں ہو، اب تو شاید آزاد نظم اور ہائیکو اور تروینی، یہ تمام چیزوں میں بلوچستان میں بھی لکھا جا رہا ہے، لیکن وہ جو ایک خاص جو یہاں کے رنگ، یہاں کے لفظ جو ہیں نا، وہ یہاں کی جو خاک ہے اس خاکی رنگ سے بڑے مماثل ہیں۔ یہ لفظ بالکل منفرد لفظیات ہے جو شاعری میں یا ہمارے لٹریچر میں سامنے آتی ہے۔ اس سے پہلا ہمارے پاس ایک ریفرنس آتا ہے جس میں وہ باقاعدہ کلیات ہیں ان کی، اس میں لیکن انہوں نے جو غزل لکھی یا وہ جو اس وقت کا جو اظہار تھا وہ انہوں نے، وہ میر اور سودا کے زمانے کے وہ تھے، لیکن وہ انہوں نے سودا کی روایت کو وہ آگے لے کر چلے، تو وہ جو ایک نشاتیہ سی ایک کیفیت ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ انہوں نے برتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انگریزوں کے زیر تسلط آتا ہے بلوچستان 1877 اور اس کے لگ بھگ جو صورتحال بنتی ہے، اس میں تاریخی طور پر پھر ایسے طریقے یا ایسے احساس کو اجاگر کیا گیا کہ جو مٹی سے مماثل ہو یا مٹی سے ریفلیکٹ کرتا ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اردو شاعری میں خاص طور سے بلوچستان میں جب اردو شاعری کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لورالائی کا ایک بڑا ریفرنس ہے، جو کوئٹہ سے ذرا فاصلے پہ شہر ہے۔ 1911 میں یوسف پوپلزئی، سردار یوسف پوپلزئی نے پہلا وہاں پر مشاعرہ منعقد کیا تھا، اور اس سے جو ہے وہ روایت جمنا شروع ہو گئی اور بننا شروع ہوئی، جو مشاعرے کی روایت ہے۔ لکھتے تو تھے لیکن اس کا اظہار کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے مشاعروں کی صورت میں، وہ پھر ہمارے کوئٹہ میں یہ آپ دیکھیے کہ 1911 میں لورالائی میں وہ شروع ہوتا ہے، ہمارے کوئٹہ میں 1927 میں بزم ادب پہلی مرتبہ قائم ہوتی ہے۔ صادق شاہ صاحب اس کو چلاتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں، تو وہ جو تنظیمی طور پر ایک صورتحال ہوتی ہے زبان کو آگے بڑھانے کے لیے اور اردو زبان کو بڑھانے کے لیے، تو انہوں نے اس کے اندر کام کیا۔ یوسف عزیز مکسی کا نام اس طرح سے ہے، زیب مکسی کا نام ہے، حسن نظامی صاحب ہیں، محمد حسین عنقا صاحب ہیں، اور اس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ قیام پاکستان تک ایک صورتحال چلتی ہے، اس میں شعر کے جو موضوعات ہیں اس میں کس طریقے سے اپنی بات کو کہنا ہے، کس سلیقے سے اپنی بات کو کہنا ہے، کس طرح سے برتنا ہے الفاظ کو، اور اس میں کیسا احساس اجاگر کرنا ہے۔ وہ اس زمانے میں ظاہر انگریزوں کے خلاف جو صورتحال چل رہی تھی اس میں اس احساس کے تحت لکھا گیا۔ پھر قیام پاکستان کے بعد پھر جو لٹریچر ہے اور وہ اس کے اندر پھر گل خان نصیر آتے ہیں، عطا شاد آتے ہیں، اور
हनफी बाकरी साहब आते हैं, एन सलाम साहब आते हैं। एन सलाम साहब का शेर मैं आप लोगों को सुनाऊं कि उम्र के वक्त के साथ बढ़ रही है सलाम, ये मेरी उम्र है कि हैरत है। अब ये इतना खूबसूरत शेर है कि जो मतलब जो हम जो जिससे अपने आप को जो एहसास जो ख़ास तौर से जब एक मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं तो उसमें जो एहसास उजागर होता है इंसान में, उसका रिफ्लेक्शन कैसे सामने आता है। और फिर इसी तरह से असर जलीली साहब का मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि सहर हुई तो उसी ने मुझे बुझा भी दिया, सहर हुई तो उसी ने मुझे बुझा भी दिया, तमाम रात जला जिसकी अंजुमन के लिए। अब ये इस तरह के खूबसूरत शेर हैं जो कि बलूचिस्तान से सामने आते हैं। और फिर अताशात की तो शेरी जो है वो मुहित वो तो इतना वसी है। और बलूचिस्तान के हवाले से वो तो कहते हैं कि बलूचिस्तान को अगर समझना हो तो आप अताशात की शायरी को पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि कोहसारों की अता रस्म नहीं खामोशी, रात सो जाए तो बहता हुआ चश्मा बोले। तो अब ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बलूचिस्तान का वो एहसास है ना कि जब वो मतलब इसको आप जो इसके जो बैनुसतूर मानी हैं वो भी मौजूद हैं और सामने भी किस कदर खूबसूरत मिसाल सामने आती है, कितनी खूबसूरत हमारे पास वो पेंटिंग बन के सामने आती है। तो हम इस तरह से जो देखते हैं और फिर उसके बाद जो अता भाई के अताशात के बाद जो उनके साथ साथ जो कंट्रीब्यूशन सामने आता है वो सईद गौहर का बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। सैफुल मुलूक आँखें, कश्मीर जिस्म तेरा, हुस्ने ख्वाब जिसकी ताबीर जिस्म तेरा। अब ये सईद गौहर का इतना खूबसूरत शेर है। और इस तरह से आबिद शाह आबिद हैं, उनके वो आते हैं। लेकिन ये फिर हमारे बुज़ुर्ग चलते रहे, उन्होंने अशार कहते रहे और फिर जैसे वक्त गुज़रा और फिर आप देखिए कि अब जो टेक्नोलॉजी का और ख़ास तौर से जो हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसके दौर में जो लोग सामने आ रहे हैं उनके अंदर वो एहसास है जो कि इंटरनेशनल वो एहसास है। अब वो आलमी तौर पर ग्लोबल फीलिंग्स के साथ हैं। उसमें जो बहुत अहम लोग हैं, बैरम गौरी हैं, बहुत अच्छा शेर लिखते हैं। और इसी तरह से जो है और भी हमारे जो बलूचिस्तान के जो ताज़ा लिखने वाले हैं, दानियाल तरीर था, उसका बड़ा खूबसूरत काम सामने आया और रिफ्लेक्शन आया सामने। तो मैं समझता हूँ कि ख़ुसूसी तौर पर हम जो बलूचिस्तान को एक अंदाज में महसूस कराना चाहते हैं, उसमें उर्दू गज़ल के थ्रू और उर्दू गज़ल और नज़्म दोनों के ज़रिए से और फिर जो दूसरी असनाफ़ को जिस तरह से अपनाया गया, उसके अंदर भी जो है वो बलूचिस्तान का एक बिल्कुल मुख्तलिफ रिफ्लेक्शन सामने आता है। और इसके अंदर जो हमारी जो एक ताज़ा लिखने वाले हैं वो अपनी एफ़र्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये विजदानी अमल है, इसके अंदर तो आप रोक तो सकते नहीं। लिखने वाले का काम तो लिखने का वो जो उसके ऊपर होता है कि वो मजबूर होता है लिखने के लिए। तो ये एक लिखने के साथ साथ उसको बयान करना और सलीक़े से बयान करना और फिर अपनी इस खूबसूरत सरजमीन को लेकर चलने में बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत लोगों का है। अगर हम नाम लेना शुरू करते हैं माहिर अफ़गानी का और नसीम अहमद नसीम का, इनाम उल हक कौसर का, प्रोफेसर मुश्तबा हुसैन का, डॉक्टर फ़ारूक अहमद का, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है बहुत बड़ा काम किया यहाँ रह कर जो है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक उर्दू ज़बान के हवाले से बलूचिस्तान को जो महसूस कराया है इन्होंने, लेकिन जो आज के अहद में जो एक बहुत बड़ी बात जो अभी आपने जिसकी तरफ इशारा भी किया कि दूसरे शहरों से हम ज़रा से फासले पर महसूस किए जाते हैं, तो उनके साथ वो इंटरेक्शन नहीं होता या वो उस तरह से खुल के बात नहीं होती, फासले हैं ज़ाहिर है। और हरदम हम उनका काम तो सारा जानते हैं, लेकिन हमारा काम उन तक
बहुत कम पहुंचता है। और जितना संजीदगी से यहाँ पर काम हो रहा है, जो आर्टिस्टिक वैल्यू लेकर के जो काम यहाँ पर हो रहा है, वो उसका एहसास वहाँ पर नहीं है। वहाँ का जो खुसूस तौर पर अगर हम कहें कि जो तनकीद लिखने वाले हैं, जो कि किसी भी फनपारे को उसकी तशरीह या उसके हवाले से जो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, वो लोग इसकी तरफ ज़रा कम माइल होते हैं। और इसका उनको एहसास होना चाहिए कि अब मैं आपको एक बात कहते हुए फिर आप पिंदील से भी बात कीजिएगा कि कुल पाकिस्तान मुशायरे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके अंदर बलूचिस्तान या कोयटा का कोई शायर नहीं होता। अब उसको कुल पाकिस्तान नहीं कहना चाहिए, मैं तो कहता हूँ उसको मुशायरा कह दीजिए, उस महफिल मुशायरा या मुशायरा आप जो भी उसको, लेकिन उसके अंदर फिर शमूलियत तो होना चाहिए। और जब वो आएगी, वो रिफ्लेक्शन आएगा, तो फिर लोगों को पता चलेगा कि यहाँ की ज़मीन, यहाँ की खाक, यहाँ की मिट्टी, उसका रंग क्या है और वो किस तरह से सोचता है। मेहरबानी मोहसिन शकील साहब, आपसे फिर हम ये सिलसिले गुफ्तगू के चलाएँगे आगे। तो कंदील बदर जो हमारे साथ हैं, अदबी घराने से उनका ताल्लुक़ है। तो मैं जब कराची से महनामा सरीर निकलता था या अहमद हमीश का तश्कील, तो वहाँ मैं एक नाम से वाकिफ़ था, रब नवाज माइल से। बहुत कम लोग उनका ज़िक्र करते हैं, जिस तरह के ऐन सलाम का बहुत कम ज़िक्र कहर होता है यहाँ। तो इसके एक मानी है कि हमारे यहाँ इस तरह की कोई तंजीम या इस तरह की कोई तहरीकें नहीं रही, सिर्फ चंद मखसूस लोगों का या उनकी कोई ख़ास बैठक होती है जिसमें लोग उठते बैठते हैं। बल्कि बहुत बड़ा अलमिया ये है कि अताशात की बरसी या सईद गौर की बरसी के हवाले से भी इस तरह की प्रोग्राम का इनेकाद नहीं किया जाता। हालांकि अकादमी अदबियात की यहाँ एक शाख अरसे से, एक ज़माने में उनके यहाँ रिवायत थी कि बलूच शोरा या ब्रावी के या पश्तू के उनके एजाज़ में बाहर से आते थे, प्रोग्राम करते थे। अब मैं तकरीबन जो 17-18 साल से यहाँ हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ। बल्कि बड़ी तकलीफ़ की बात है कि अताशात इतने बड़े शायर, बहुत सारे शोरा की उन्होंने तरबियत की है। यह सईद गौहर जितना बड़ा घराना है उनका अदबी, तो उनको लोग याद नहीं करते। इसकी वजह क्या, इस पर भी हम सवाल करेंगे, आपके जहन में ये सवाल रहे। मगर कंदील बदर साहिबा से ये सवाल है कि बलूचिस्तान में जो शायरात हैं, चंद के नाम आ जाते हैं, आप उनमें से ज़्यादा मशहूर हैं। कुछ को मैं तो जानता हूँ कि मुख्तलिफ मुशायरों में 2-3 नज़में कही हैं, फिर छोड़ दी है, अपनी ज़ुबान की तरफ चली गई हैं। तो ख़वातीन या शायरात की कोई ऐसी आवाज़ क्यों नहीं बन रही है? अक्सर बेशतर मुख्तलिफ महफिलों में मैंने देखा है कि बताए कि भाई ये देखो, ये हमारी परवीन शाकिर हैं, ये देखो हमारे पैमीदा रियाज। भाई क्यों उनसे कहोगे भाई पैमीदा रियाज हैं? हम तो कहो कि तुम कंदील बदर हो, तुम्हारी अपनी हैसियत है, तुम्हारी अपनी आवाज़। ये आवाज़ हमारी शायरात के हवाले से क्यों नहीं बन रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही? अच्छा सर, बहुत आपका अच्छा सवाल है। मेरे बड़े मोहतरम यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। आपका सवाल भी बहुत ज़रूरी है। मैं आखिर में 1-2 बातें उस पर भी करना चाहूँगी, लेकिन वक्त की किल्लत है और मैं इस वक्त को इससे इस्तेफ़ादा करना चाहती हूँ। एक तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान की उर्दू शायरी पर मेरा खसूसी काम है। मैंने एमफिल की सतह पर यहाँ की गज़ल पर मकाला तहरीर किया और पीएचडी की सतह पर यहाँ की नज़्म पर मकाला तहरीर किया। तो उर्दू शायरी का एक अपने घराने के साथ साथ मैं मुंसलिक रही हूँ। बलूचिस्तान की उर्दू शायरी से बड़ा करीबी मेरा ताल्लुक़ है। तो आपने जो इससे कब्ल सवाल किया था कि बलूचिस्तान की शायरी की खसूसियात क्या हैं और बाहर इसका तासुर कैसा है, तो मैं भी इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे ज़रूरी नुक्ता है जिसको एड्रेस होना चाहिए यहाँ पर। देखिए, बलूचिस्तान से बाहर मेरा जाना हुआ है और मैंने देखा है, जैसे अभी सर बात कर रहे थे कुल पाकिस्तान मुशायरों की, लेकिन सिर्फ कुल पाकिस्तान मुशायरे नहीं हैं, बड़े बड़े अदबी जरायद जो निकलते हैं दीगर मराकज़ से, इसी तरह जो इंतखाबात शाया होते हैं, उसमें बलूचिस्तान का कहीं कोई तज़किरा मौजूद नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? एक तो ये ज़मीनी फ़ासला, इसको भी सर ने मेंशन किया, ज़मीनी फ़ासला इतना है नहीं जितना जहनों में रासिख़ हो चुका है। कि ऐसा लगता है कि जैसे बलूचिस्तान वो चीज़ें पहुंचती ही नहीं हैं जो मरकज़ में
जिन पर बात हो रही होती है। तो मैं थोड़ा सा इसको दोहरा दूँ कि हिजरत क़याम पाकिस्तान के बाद अगर वहाँ हिजरत की शायरी हो रही है तो यहाँ हो रही है, अगर वहाँ दाग दाग उजाले की बात हो रही है तो यहाँ हो रही है, अगर वहाँ तक तरक्की पसंदाना फ़िक्र और तहरीक जड़ें पकड़ रही है तो यहाँ भी उसी तरह से ये तहरीक, बल्कि तरक्की पसंदाना और मुज़ाहमत की तो जो शायरी बलूचिस्तान में हुई है उसका दूसरा कहीं कोई नमूना पेश नहीं किया जा सकता। इसके बाद लिसानी तश्कीलात हैं, जदीदियत या वजूदियत, गज़ल में तजदीद का सफ़र, नज़्म की तरफ मराजियत, यानी जब वहाँ पर नसरी नज़्म पर मुबाहिसे हो रहे थे, यहाँ पूरे वसूख के साथ नसरी नज़्म लिखी जा रही थी। तो बलूचिस्तान बिल्कुल मरकज़ से कटा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ है। वहाँ की तहरीकें, वहाँ के रुझानात उसी तसलसल के साथ उसी तरह से यहाँ की अदब का शेर का हिस्सा बनते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ख़ास हिस्सा है जिस पर बात होनी चाहिए वो बलूचिस्तान का अपना हिस्सा है कि उर्दू अदब की धारे तो यहाँ पर मतवासी चल ही रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान की शायरी का एक अपना एसेंस है, एक अपना जायका है जिसकी ख़बर वहाँ मौजूद नहीं है। बलूचिस्तान के शुअरा का सबसे अहम काम ये है कि शऊरी और गैर शऊरी तौर पर उन्होंने बलूचिस्तान को उसके तमाम तर जो चीज़ों से जुड़ी हैं, उसके सियासी तनाजुर से लेकर उसके मज़ाहमती रवैयों से लेकर उसके सकाफ़त, उसके फ़ोकलोर, उसकी तारीख़, उसकी तहज़ीब, उसके लिसानी डिक्शन, हर चीज़ को उसने शऊरी या लाशऊरी तौर पर उर्दू अदब का, उर्दू शायरी का हिस्सा बना दिया है। और ये वो हिस्सा है जो बहुत खुश आहंग है, बहुत खूबसूरत है, और उर्दू की शायरी इससे फ़िलहाल बिल्कुल नाबलद है। वो नहीं जानती कि बलूचिस्तान के शुअरा ने ये कैसा रंग जो है ये दाखिल कर दिया है। तो इसमें थोड़ा सा मैं वो करूँगी कि डिक्शन हम जानते हैं संगाब और बरफाक की अलामात जो ट्रेवल हुई अताशात की आवाज़ बड़ी थी, उसकी गूंज हमें सुनाई दी कहीं कहीं बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन दीगर दबे हुए हैं। तो बहुत सारा डिक्शन यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस के अल्फाज बहुत कसरत के साथ उर्दू शायरी का हिस्सा बने हैं, यानी लिसानी इजाफे हमने किए हैं, हमने इस्ताराती, अलामाती, मुरक्कबाती इजाफे किए हैं। हमारी फ़ोकलोर, यानी आपको यहाँ मस्त और सम्मो और हानी और शह मुरीद के बाकायदा किरदार मिलेंगे। ये लैला मजनू या सोहनी महिवाल से नहीं जोड़ते, ये सम्मो और मस्त के ज़रिए बात करेंगे। तलमीहात का इजाफा हुआ है, जाकर एक बुनियादी किरदार के तौर पे आपको मिलेगा। इमेजरी का इजाफा हुआ है, जैसे सर ने कहा, यहाँ की ये जो अता चश्मों के और कोहसार और कारेज़ें और बहुत कुछ है जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, वो हमने ऐड कर दिया उर्दू शायरी में। सकाफ़त का इजाफा हुआ है, यहाँ की खाना बदोशाना तर्ज़ ज़िंदगी का, कबायली ज़िंदगी का इजाफा हुआ है। इसमें मतलब चाप है, अतन है, दुस्माल है, ज़हरूग है, मतलब जितनी भी अहम हमारी असनाफ थी लोकल लैंग्वेजेस की, वो सब की सब उर्दू में दाखिल हो गई। यहाँ का मौसीकी, उसका तर्ज़ अमल दाखिल हो गया। आहंग की सतह पर ये बिल्कुल तरोताज़ा शायरी है, एक ऐसी शायरी है जो आपको मरकज़ में जिसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, फिर मौका मिले या ना मिले, बहुत बड़े लोग मेरे साथ बैठे हैं, कि हमें अब इन तमाम की रोशनी में ज़रा उर्दू शायरी को देख लेना चाहिए। मैं तमाम की बात नहीं कर रही, अक्सरियत की बात कर रही हूँ, अक़लियत की बात नहीं कर रही। खाल वहाँ बहुत बड़े नाम और बहुत बड़ी शायरी हो रही है, लेकिन अगर इस वक्त हम गौर करें तो मकासद क्या हैं वहाँ लिखी जाने वाली शायरी के बड़े मराकज़ में, मजमूई उर्दू शायरी में, तो या तो शोहरत है या ज़ाती मफादात हैं, ज़ाती तरवीज है, जिनके जो माखज़ है शायरी का बुनियादी ये बना दिया गया है। लेकिन आप बलूचिस्तान में देखेंगे तो इनको इन चीज़ों से, शोहरत से, ये न सताइश की तमन्ना, न सिले की परवाह, इसके मज़दाक यहाँ बैठकर
हर तरह के थपकियों से, शाबाशियों से, वाहवाही से दूर ये असल अदब तख्लीक कर रहे हैं, बहुत खामोशी से तख्लीक कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात का मैं दावा करती चलूँ कि जो इंटेलेक्ट, जो सियासी शऊर आपको बलूचिस्तान के अदीब में मिलेगा वो आपको दीगर कहीं नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया। मेरा शुक्रिया कंदिल बदर। तो बातें बहुत सारी हो सकती हैं मगर टाइम हमारे पास कम है क्योंकि हमने तो सिर्फ क्वेटा से शुरू किया है। बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, वहाँ कुरान में भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, कहानियाँ लिख रहे हैं, नज़में लिख रहे हैं, ख़ासतौर पर निकात से लेकर सिंबल तक और तस्तीर तक आप देख सकते हैं कि उनके शुमारों में वहाँ कुरान के बहुत सारे लोग बड़ा अच्छा लिख रहे हैं। और बहुत सारी बातें, क्योंकि जिस तरह के मोहसिन शकील साहब ने कहा, इतनी बड़ी इकरार हुसैन साहब से लेकर फारूक एहसन साहब तक और अब तक के सलीम अहमद के भाई शमीम अहमद भी यहाँ रहे हैं, तो उन्होंने वाकई यहाँ उर्दू अदब के हवाले से बड़ा अच्छा काम किया है, बेहतरीन काम किया है। मगर इसके बावजूद कि आपके ज़िया साहब इससे वाकिफ़ होंगे, डॉक्टर हैं, कि उनके पास बहुत सारी थीसिसें भी आ जाती हैं बलूचिस्तान के अदब के हवाले से, तो ये बात जो सारे हम आपने शिकायत तो नहीं है, एक हिकायत आप इसे समझे कि हमने कहा कि भाई यहाँ जो कुछ लिखा जा रहा है वो वहाँ तक पहुँचता नहीं है, या वहाँ जो लोग लिख रहे हैं उनका जिक्र ये नहीं होता। हालांकि आगा साहब वहाँ शबखून में चप रहे होते हैं, फारूक सरवर तो बिल्कुल शबखून में चपते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी एजाज़ की बात थी कि कोई बंदा शबखून में चप जाए। तो मगर यहाँ क्या है, लाहौर या कराची में आगा साहब उसके हवाले से या पाकिस्तान की फिक्शन कहानी पर लोग लिखते हैं, उनका जिक्र नहीं होता, या मोहसिन शकील के आताशात का, बाकी लोगों का। इसका वजह क्या है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। पहली बात तो ये है कि MA, MPhil, PhD के लिए लिखे जाने वाले मकालात अदब का मयार मुतय्यन नहीं करते। अगर वहाँ से जो मकालात लिखे जाते हैं उनमें बलूचिस्तान के शायरों और अदीबों का जिक्र नहीं होता, तो उसकी वजह उन इदारों में पढ़ाने वाले असातिज़ा का इग्नोरेंट होना है, जहालत है, उनके पढ़ते नहीं हैं। नंबर 2, जब उस्ताद नहीं पढ़ते तो तालिब इल्म क्या खाक पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे नहीं तो उन्हें मालूम कैसे होगा कि कहाँ कहाँ अदब लिखा जा रहा है। इसलिए पहले तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा बलूचिस्तान में रहने वाले दोस्तों से कि MA, MPhil, PhD के मकालात को अदब का मयार मत बनाएं। दूसरी बात है मुशायरा। मुशायरे में मेन स्ट्रीम के 5% शायर शामिल होते हैं, 95% शायर वो होते हैं जो दूसरे और तीसरे दर्जे के शायर होते हैं। हमने सरवत हुसैन को मुशायरों में नहीं देखा। सरवत हुसैन अपने दौर का सबसे अहम शायर था। यहाँ बैठे हुए ये तालिब इल्म, इनमें से कितने लोगों को सरवत हुसैन का नाम पता है और उनकी शायरी पढ़ी है? कराची के शायर थे। कितने लोगों ने जमाल सानी की शायरी पढ़ी है? कितने लोगों ने अफजाल अहमद सैयद की शायरी पढ़ी है? ये मेन स्ट्रीम के शायर हैं जिनका नाम ये नहीं जानते। ये मुशायरों के शायरों का नाम जानते हैं। किसी अदब की मेन स्ट्रीम मुशायरों के शायरों से नहीं बनती। गहरे और आला दर्जे के तख्लीकी तजर्बा रखने वाले शायरों से बनती है। वो यहाँ भी है, कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं। अहमद अजीम कासमी मुशायरों के बादशाह थे। पूरे पंजाब में मुशायरे उनकी इशारे अबरू से होते थे। आज अहमद नदीम कासमी का नाम लेने वाला, उनका शेर सुनाने वाला, उनके शेर पे बात करने वाला एक आदमी नहीं है। फैज़ अहमद फैज़ मुशायरों के शायर नहीं थे, लेकिन फैज़ साहब को पढ़ने वाले कौन है जो फैज़ का नाम नहीं जानता? फैज़ की शायरी में इतनी ताकत थी कि मुशायरों के बगैर लोगों के दिलों में, उनके वजूद में उतर गई। तो ये मैं पहली 2 चीज़ों की वजाहत तो ये कर दूँ। बलूचिस्तान की शायरी से मैं
आगा गुल को तो मैं जानता हूँ कि आगा गुल मेन स्ट्रीम के अफसाना निगार हैं, इस वजह से मैं वहाँ लाहौर में बैठा हुआ, मेरे घर में इनकी किताबें भी हैं, मैंने पढ़ी भी हैं और लोग भी पढ़ते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में इनके उस पर अगरचे वो मेयार नहीं है, लेकिन बहरहाल वहाँ इनके अफसाने पे काम भी हुआ। बलूचिस्तान के अदब से मैं दो तरीके से वाकिफ़ हूँ, एक ज़ाती सतह पर और एक मुतालियाती सतह पर। मुतालियाती सतह पर कुछ काम यहाँ बहुत अच्छा हुआ है, जैसे इनामुल हक कौसर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, फारूक साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। अभी पीछे जो है ये आगा नासिर की किताब जो है, आगा मोहम्मद नासिर की किताब, ये तो तज़किरा है पूरी बलूचिस्तानी शायरी का। मैंने इसे अव्वल से आखिर पढ़ा है, सबसे ज़्यादा गौर से इस पढ़ी है वो शायरी जो इसमें दी गई है, जिससे मुझे बलूचिस्तानी शायरी के बारे में जो मालूमात हुई वो मैं आपको पेश कर देता हूँ। जैसे कि पहले बात हुआ कि हसन बरावी पहले आदमी हैं जिन्होंने शायरी की, उनकी बड़ी ट्रेडिशनल सी शायरी थी, उस शायरी में कुछ भी नहीं था। उसके बाद क़याम पाकिस्तान तक बलूचिस्तान में होने वाली उर्दू शायरी में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? कभी हो ही नहीं सकता किसी ऐसे ज़बान की शायरी में जो उस खित्ते के कल्चर में पेनिट्रेटेड ना हो। जब ज़बान पेनिट्रेट करती है किसी खित्ते के कल्चर में, तब उसमें आला दर्जे की शायरी पैदा होती है। तो ये जो पेनिट्रेशन थी, ये क़याम पाकिस्तान के बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हुई है। मैंने ऐन सलाम को, रब नवाज माइल को और अता शाद को रसायल में पढ़ा। मैं इनके काम से, रसायल में छपने वाले इनके काम से या आगा गुल साहब के काम से वाकिफ था, उर्दू के अदबी रसायल के ज़रिए से। तो मैं 1986 में आया, को एक महीना कोयटा में रहा। उस ज़माने में मेरी इमदाद निज़ामी साहब से मुलाकात हुई, बैरम गौरी से हुई, सदफ चंगेज़ी से हुई, 3 लोगों से मेरी मुलाकातें हुई बहुत सारी। तो उनसे मैं बराह रास्त उनसे मैंने शायरी सुनी उस ज़माने में 1986 में। बहुत हम 40-50 गज़लें नज़में से कम नहीं सुनते थे, इसलिए कि उससे कम से पता नहीं चलता। तो अताशात की मैं आपको बताऊं, होते हैं तसव्वुरात। अताशात के बारे में लाहौर में कहा जाता था ये कोयटा के शायर नहीं है, कोटे के शायर हैं। ये कौन कहते थे? वो मुशायरे वाले लोग। हमने उनसे सुना। जब मैंने अताशात को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कहने वालों से ज़्यादा बेहतर शायर हैं, कहने वाले उनसे ज़्यादा कोटे पे जाते हैं इन मुशायरों में। ठीक है, हम नहीं मानते किसी दूसरी की राय, हम मानते हैं अपने ज़ौक़ अदब की राय। ज़ौक़ अदब ने मुझे ये बताया कि तख्लीकी अदब जिसे हम कहते हैं, फिक्शन और शायरी, वो तख्लीकी होता है या गैर तख्लीकी होता है या कम तख्लीकी होता है। जो तख्लीकी होता है उसमें क्या आता है? उसमें इंसान का पूरा वजूद आता है। पूरा वजूद एक कल्चर उसकी नॉरिशमेंट करता है, तो अपने पूरे कल्चरल तनाजुरात में आता है। कल्चर 2 तरह से आता है शायरी में और अदब में। एक ये कि मसनूई तरीके से हम उसको लाते हैं कि जी हमें लोगों को पता लगे जी बलूचिस्तान का अदब कल्चर क्या है, सिंध का कल्चर क्या है, पंजाब का दही कल्चर क्या है। बहुत काम हो रहा है, बहुत 3rd क्लास नावल, अफसाने और शायरी की जा रही है जिसमें कल्चर बड़ा डोमिनेंट है। कल्चर आता है इंसान के वजूद के ज़रिए से, जो वो तख्लीकी तजर्बे का निचोड़ होता है। वो ये बताता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कितना हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। ये जिस पाकिस्तान में रहते हैं हम, ये आप सब जो बैठे हुए हैं, आप नहीं हैं। पाकिस्तान की फैसला साज ताकतों के सामने आप कोई है ही नहीं। यू आर नोबॉडी। तो आप जो नहीं हैं, वो हमारा शायर और हमारा अदीब बताता है कि आप ही हैं, वो नहीं हैं। वो मर जाते हैं। जो आज आपको कह रहे हैं कि आप नहीं हैं, वो मर जाते हैं। आप जिंदा रह जाते हैं क्योंकि आप अदब में आ जाते हैं।
دنیا میں ادب ایک دفعہ تخلیق، بڑا ادب جب تخلیق ہوتا ہے، آج تک کوئی مثال نہیں ہے کہ اس کی موت واقع ہوئے۔ ادب کے ساتھ اس خطے میں رہنے والے لوگ بھی امورٹل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے وجود کو بیان کرتا ہے۔ تو بلوچستان میں جو اردو ادب ہے وہ 60 کی دہائی کے بعد آپ کے وجود کا اظہار بنا، آپ کے کلچر کا اظہار بنا۔ اور اس وقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں دو نوجوان اور بے شمار جن کا ذکر انہوں نے کیا ہے، وہ سارے لاہور میں شعر کہنے والے 85% شاعروں سے بہتر شعر کہہ رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ابھی آنے سے 2 دن پہلے میرے 2 دوست ہیں، حماد نیازی اور عدنان بشیر، وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ میں نے کہا میں نے کوئٹہ جانا ہے، تو کوئٹہ کے شاعروں کا ذکر شروع ہوا، ان سب کا ہوا ذکر۔ وہ سب جانتے ہیں، کون جانتا ہے کوئٹہ کے شاعروں کو؟ جو تخلیقی تجربے کو سمجھنے والا ہے۔ آپ کیا، میں نے تو آپ کو کہا کہ یہ سب لوگ ثروت حسین کو نہیں جانتے، اتنے بہت اعلیٰ درجے کے شاعر کو۔ تو کیا میں اس کو معیار مان کے کہوں ثروت شاعر نہیں ہے؟ ثروت کا معیار یہ ہے کہ کراچی سے لے کے خیبر تک غلام محمد قاصر خیبر پختونخوا کا شاعر ہے، یہاں کراچی اور بلوچستان تک، کیا آپ اس کو نہیں جانتے؟ تو بڑا ادب ہوتا ہے تخلیقی ادب، جو انسان اور اس کے معاشرے کو لے کے چلتا ہے۔ جو بلوچستان میں اس وقت اردو ادب سب سے زیادہ رچ ہے، اتنا ہی رچ ہے جتنا لاہور میں، کراچی میں، پنڈی، اسلام آباد میں، ملتان میں یا پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ۔ بلوچستان کی داستان بڑی لمبی ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، تو ایک سیشن میں بہت ساری باتیں ہو جائیں، مگر ڈاکٹر صاحب نے بے خبری کی ایک بات کہی ہے تو میں اس کی وضاحت کر دوں پنجاب اور لاہور کے حوالے سے۔ ہمارے یہاں ابزار سید کو لوگ اب جانتے ہیں، مگر ہمارے علاقے میں بچہ جن کا تعلق ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں، وہ جانتے بھی ہیں۔ وہ ثروت حسین تو ہمارے یہاں اتنا مشہور ہے، آپ کسی بھی شاعر سے پوچھیں تو وہ بتا دے گا کہ یہ رسم انبیاء زندہ ہم ہی سادات رکھیں گے، جہاں پر آگ دیکھیں گے وہیں پر ہاتھ رکھیں گے۔ تو یہ ان کا اتنا مشہور شاعر نہیں ہے، مگر یہ بھی ہے کہ وہ میرے سامنے کیا اپنا لباس بدلنے لگا کہ نگار خانے کے ابر و ہوا بدلنے لگا۔ تو ایک اور قصہ وضاحت کر لوں پنجاب لاہور کی بے خبری کا۔ ہم وہاں چلے گئے تھے، لاہور میں ایک ڈاکٹر تھے PhD کے، ادب آرٹ پر لکھتے ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو میں نے اس سے مذاقاً کہا، اس وقت وہ بندہ زندہ تھا، میں نے کہا یعنی مادھو رسوا یہاں کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا یہ مادھو رسوا کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا تم نے انتظار حسین کو پڑھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے اس کی بہت ساری کہانیاں پڑھی ہیں۔ میں نے کہا علامتوں کا زوال آپ اسے پڑھ لو، تمہیں پتہ چلے گا ظاہر ڈار مادھو رسوا ہوا کرتے تھے۔ یعنی ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، ہمیں یہ خبر ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اب بھی پارسی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب وہاں یہ مسئلہ ہے کہ تحسین پراکی کو آپ نکال دیں، وہاں پارسی جاننے والے بھی لوگ نہیں رہے۔ اس سلسلے کے واقعہ ایک مزید سناتا ہوں میں آپ کو۔ ہم سفر کر رہے تھے، ڈاکٹر ناصر عباس نیر تھے، ضیاء صاحب بھی ساتھ تھے۔ تو میں نے یہ سوراب سپیری ہے، صدائے پائے آپ، جو ان کی بہت مشہور نظم ہے، میں نے ان کی کچھ مصرے سنائے تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں وہ ہوں تم جن کے بارے میں نہیں جانتے ہو۔ آپ سب کا شکریہ، مہربانی تم آئے۔ یہ سلسلہ کسی وقت اور بھی گفتگو جاری رہے گی۔ بلوچستان بہت بڑی زندگی ہے، بڑی دکھ کی کہانی ہے، اور باتیں مختصر، وقت مختصر۔ شکریہ آپ سب کا، اور آپ سب کا، آپ سب نے ہمیں سنا۔ مہربانی۔